Hello students, how are you all? I think so you are doing well. So myself, I am Sagar sir, chemistry faculty, going to start these chapters. Already I have done one lecture of these chapters. Today I am going to start with the second lectures of these chapters, which is called aldehydes, ketones, and carboxylic. We know that what is the meaning of aldehydes, ketones, and carboxylic acid. In today's segments, I'm going to start with the nomenclatures. All of you know nomenclatures means what? Nomenclature is the way of naming of compounds. And as we know that nomenclatures is basically two types. First one is called common system and second one is called IUPAC system. IUPAC means internationally naming of compounds. Okay. So in these segments, we will do also about a common system. Common means commonly कैसे name करते हैं. Common name depends upon the what source of compounds, nature of the compounds, where it will originate, which is called common system. Okay. So first of all, I'm going to start with the common name of what aldehydes. First thing I would like to clear you all these things. Common name don't have any specific rules. All rules we have in the IUPAC system we will do further in next segment, but I want to explain about common section, common naming. We do not having any specific rules. We have to remember as it is. Okay. So first I'm going to take some examples like a common system. Okay. So first example like aldehydes. Aldehydes means what? Which must contains CHO like HCHO, HCHO. Okay. HCHO means what? This compound is called formaldehydes. This compound is called formaldehydes. Formaldehydes. Okay. So formaldehyde is the common name. Okay. Now next one, suppose we have compound like this way, CH3CHO, CHO. This compound is called acetaldehydes. This is called acetaldehydes. Okay. Now third one is very easy. Third one is called CH3, CH2 and CHO. CHO. Okay. This is called propionaldehydes. 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 Same we will say fourth segment will be what? CH3, CH2, CH2, CHO. This is called butyraldehydes. This is called butyraldehydes. Okay. So only if you are writing butyraldehyde in exam, so this will not correct. As we know that in the common system we have to use some prefix. For the straight carbon chain we have to use N. For the one branch we have to use iso. Okay. So similarly here I can put here N. N is indicating for what? This given carbon is a straight chain carbon. Okay. So this is the N butyraldehyde. Same compounds I can consider like this way. Fifth one, CH3, CH, CH3, okay, and CHO. CHO. Okay. So this part is called iso. You can say what? Instead of N, I will put down here iso. Isobutyraldehyde. Isobutyraldehyde. Butyraldehyde. Okay. So this is the methods where we can do common naming of the compounds. Okay. So first to note down this one, then I will continue further. Okay. Thank you so much. Okay, students. Now we will do IUPAC system of aldehydes. Okay. So I'm going in very simple way. How can you name IUPAC name of aldehydes? Okay. So
First, you have to remember some rules, like suppose any aldehydes, ketones, carboxylic acids are named on the basis of what? Alkane. ठीक है? Alkane, 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 alkane of E replaced by Al. Al. Compound will be alkanal. Alkanal. Okay? सो जब कभी भी हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का नेमिंग करते हैं तो याद रखना उसका एंड का जो प्रीफिक्स होगा, ओके, आई मीन सफिक्स होगा, दैट विल बी व्हाट? अल्केनल. अल्केनल लाइक मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, व्हाटएवर. ओके, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर. फर्स्ट एग्जांपल, suppose compound is given like a HCHO. Okay, so we can consider here we have one carbon atom. One carbon, okay. One carbon means we know that methane, okay. This is called methane. But in the reference of aldehydes, this will be what? E replaced by Al. Compound will be what? Methanol. Compound will be what? Methanol. Similarly, suppose I am going to consider second example like CH3CHO. Okay, we have two carbon. Two carbon means what? Ethane. Ethane of E replaced by Al, compound will be what? Ethanol. So this is called ethanol. Ethanol. Similarly, suppose I am going to consider third examples CH3, CH2, CHO. Okay, we have three carbon. Three carbon means what? Propane. Propane will be formed like a propanol. Propanol. Okay. So this will be propanol. Same we can say butanol, pentanol, hexanol, whatever. Okay. Suppose I am going to consider these examples like fourth one, CH3, CH2, CH2, CHO. Okay. This compound is called butanol. Butanol. Don't use prefix N here because N, iso, secondary. This is used only in the common system. So this is called butanol. It's the same compounds we can write in the different manners like CH3, CH, CH3 and CHO. Okay. So we have four carbon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 carbon. This is called, we can say what? This is the first carbon, second carbon and third carbon. Second, on the second carbon we have methyl. This is called 2-methyl, 2-methyl, and in a straight chain we have 3 carbon, which is called propanol. 2-methyl propanol. Okay. So this is a very simple way of naming of Ayurvedic systems of aldehydes. Okay. Similarly, I am going to consider a more example. Suppose I am going to consider aromatic aldehydes. Okay. So what is the aromatic aldehydes? Aromatic aldehydes. Aromatic aldehydes are those aldehydes when aldehydes are directly attached with what? Benzene. Suppose I have here aldehydes CHO. So these aldehydes directly attached with benzene ring, which is called aromatic aldehydes. And we know meaning of aromatic. Aromatic is nothing but they have conjugation. Conjugation means what? उसके अंदर alternate bonding होगा, single bond, double bond, या फिर हम लोग circle से दिखा सकते हैं. Okay? So this compound is called benzaldehydes. This is called benzaldehydes. So my dear friends, I want to clarify one thing कि common name हो या IUPAC name हो. Common name में मैंने आपको एरोमेटिक का नहीं बताया था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था. तो कॉमन नेम हो या फिर IUPAC नेम हो, दोनों का नेमिंग एक ही तरीके से होता है. कॉमन में भी आप बेंजल्डिहाइड बोलोगे और इनफैक्ट आप एरोमेटिक आई मीन IUPAC में भी क्या बोलोगे? आप इसको बेंजल्डिहाइड बोलोगे. ओके. तो कॉमन की बहुत सारी बातें IUPAC में कंसीडर किया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है. यू कैन से व्हाट? बेंजल्डिहाइड. अब इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पे आता है तो आपको कॉमन में ऑर्थो मेटा पैरा यूज करना है,
ठीक है। बट आईपीएससी के केस में क्या करना है आपको, यू कैन से 1 2 3 4 ऐसे करना है, ठीक है। जस्ट गिव मी टेक वन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ये है बेंडिंग रिंग है और यहाँ पे CHO है, ओके, और सपोज वी हैव CH3 group here, CH3 group here, methyl, okay. You can say this is the first carbon, 1 2 3. You will be say what, 3 methyl. This is called 3 methyl benzaldehydes. This is called 3 methyl benzaldehydes, okay. So this is the way of writing of IUPAC name of aldehydes of aliphatic compounds and as well as what, aromatic compounds, okay. aliphatic मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ पे देखोगे तो आपका सब अल्केन के फॉर्म में होगा, इनफैक्ट एल्कीन भी हो सकता है, ठीक है, ओके। नोट डाउन प्लीज। फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू कंसीडर लाइक CH3 CO CH3, okay. So this compound is called acetone, okay. आप लोगों ने काफी टाइम सुना होगा कि एसीटोन क्या होता है। एसीटोन का नाम बहुत फेमस है, आज से नहीं बहुत सालों से यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ओके। तो यहाँ पे एसीटोन जो होता है, आपको एक बेसिक बताता हूँ, जैसे कि नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज होता है। दिस इज एक्चुअली वोलेटाइल कंपाउंड्स, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एसीटोन। इसका एक और नेमिंग कर सकते हैं, वी हैव 2 मिथाइल, तो कॉमन में हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल कीटोन, this is called dimethyl ketone, okay. Now second part we can say CH3 C double bonds O CH2 CH3, okay. तो आप देख सकते हो यहाँ पे we have 2 alkyl group, ये आपका CO कीटोन है, आपका कीटोन्स के बाजू में ये alkyl group, ओके। यहाँ पे आपका ये इथाइल है और ये आपका मिथाइल है। इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा आपका, इथाइल और मिथाइल। फर्स्ट इथाइल विल कम, राइट, ठीक है। इथाइल, व्हाई इथाइल, बिकॉज़ ई पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो जब आपके दो अल्काइल ग्रुप हैं तो वहां पे यू शुड आइडेंटिफाई कि which alkyl group will come first. So here we have the alkyl group which is called ethyl, तो आप इसको बोल सकते हो क्या, this is called ethyl and this is the methyl and ketone. This is called ethyl methyl ketone, okay. Now I'm coming on third part, like suppose I have CH3 CH2 C double bonds O CH2 CH3. This compound we have two ethyl group. This is called diethyl ketone. Okay. So this is a way of naming of what, compounds of ketones, common name. Okay. Now we are coming on next part which is called fourth one. Okay. अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास में सपोज कोई ब्रांच में आ गया CH3 CH और CH3 है, अगेन वी हैव कीटोन्स CO CH CH3 एंड CH3, ओके। तो आप सबको पता है कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड आइसो। कॉमन में आइसो होता है, ये भी क्या होगा आपका आइसो। तो वी हैव टू आइसो ग्रुप which will attach directly with the ketones. So this compound is called diiso, याद रखना, दो बार आई आएगा, diiso and propyl। ट्रिकार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोपाइल, diisopropyl ketones. This is called diisopropyl ketone, okay। तो ये कीटोन्स का नेमिंग करना है। तो ये था आपका एलिफेटिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा एरोमेटिक की एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में यहाँ पे
फिफ्थ वन में यहाँ पे सपोज ये बेंजीन रिंग है विच इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ में सी डबल बॉन्ड्स हैं मतलब कीटोन है और यहाँ पे CH3। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH3CO, CH3CO किस में आता है आपका CH3CO, जिसको बोलते हैं एसीटोन। तो CH3CO इज कॉल्ड एसीटोन एंड दिस इज द फिनोल। ऑन मतलब होता है कीटोन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोफिनोल, फिनोल, ओके। एसीटोफिनोल, एसीटोन और बेंजीन का बना है आपका विच इज कॉल्ड एसीटोफिनोल, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास एग्जांपल्स ऐसे दिया हुआ है, एक एग्जांपल्स और कंसीडर कर लूंगा मैं यहाँ पे। अगर सपोज आई हैव एग्जांपल लाइक दिस वे, टू बेंजीन रिंग, two benzene ring and C double bonds O, again we have two benzene ring, okay, ऐसे है। so this part is called phenyl and phenyl, we have two phenyl, this compound is called diphenyl ketone, diphenyl, phenyl CO का मतलब होता है क्या, this is called ketone, okay। so students this way we can do common name of what, कीटोन। कीटोन लास्ट में याद रखना, वन आता है तो यहाँ पे सबके लास्ट में आपका कीटोन 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 सब जगह पे आप देखो आपका वन यूज किया हुआ है, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ नेमिंग ऑफ कॉमन सिस्टम व्हिच आर मेंशन्स इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो प्लीज नोट डाउन दिस वन। Okay students, so we will do next part IUPAC system of ketones, IUPAC system of ketones। So students, just I want to tell you one thing, these namings are very easy to remember, okay। just you remember like a ketones last में वन आता है, वन, ओके। तो सिमिलरली कोई अगर अल्केन है, जैसे एल्डिहाइड्स में किया था हम लोगों ने, अगर अल्केन है तो अल्केन का जो ई है, ई विल रिप्लेस बाय वन, ONE1, कंपाउंड विल बी व्हाट, अल्केनॉन, अल्केनॉन। तो इसी सीक्वेंस में अपने को नेमिंग करना है, लाइक प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है। बट यू कैन नॉट से मिथेनॉन बिकॉज वन कार्बन ऑफ कीटोन इज नॉट पॉसिबल। कीटोन किसको बोलते हैं हम लोग, कीटोन उसको ही बोलते हैं जहां पे कम से कम 3 कार्बन्स हैं। कीटोन्स का मतलब CO ग्रुप होता है और सपोज CH3 ग्रुप एंड वी हैव CH3 ग्रुप, ओके। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कीटोन, जिसको हम लोगों ने एसीटोन के टर्म्स में देखा था। तो इसको अगर नेमिंग करना है तो वी हैव 3 कार्बन, 3 कार्बन है यहाँ पे। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, यू कैन से व्हाट, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन का ई रिप्लेस बाय व्हाट, वन, ऐसे कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो पोजीशंस ऑफ CO, कीटोन का जो पोजीशंस होता है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वी हैव कीटोन्स ऑन द सेकंड पोजीशन। बट अगर आप करना चाहो ये हो जाएगा आपका क्या, सिमिलरली यू कैन राइट हियर प्रोपेन 2,1, प्रोपेन 2,1, ओके। प्रोपेन 2,1, 2 means what, 2 is indicating for positions of ketone, okay। Now similarly suppose I'm going to consider next example like CH3, C double bonds O and CH2, ठीक है। So as you know that in the IUPAC system always we have to select longest continuous chain, longest continuous chain select करना होता है। तब ध्यान से देखोगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। ऑन द सेकंड पोजीशंस ऑफ कार्बन वी हैव कीटोन, so naming will be what, you can say this compound is called butane, butane, butane का मतलब E replaced by 1 and we also show the positions of second one, this is called butane 2,1,
ओके, सो दिस वे वी कैन नेम, आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसका पोजीशन क्या होगा, वो याद रखना है। एंड लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आपके पास होना चाहिए। ओके, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड वन। ओके, सपोज आई हैव एग्जांपल लाइक CH3 CH2 C double bonds O CH CH3 एंड CH3। ओके, तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ब्रांच है, तो ब्रांच को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। नेमिंग करेंगे तो थर्ड पे आपका कीटोन आएगा, थर्ड पे कीटोन आएगा, बट यहाँ पे ब्रांच भी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी गो टू द ब्रांच। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल, तो पर आपका मिथाइल है। ओके, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। स्ट्रेट में कितने कार्बन है हमारे पास, 5 है। यू कैन से व्हाट, पेंटेन, यू कैन से व्हाट, पेंटेन टू 1, पेंटेन टू 1। 1 means ketones, 1 is indicating for what, ketones, just remember this one. Okay, so please write down this one, then I will give you more examples on the basis of ketones of IUPAC. Okay, ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किया है जो कि आपके इंट्रेंस में भी पूछा जाता है, चाहे नीट का हो या जेई का हो। ओके, तो ये एग्जांपल्स करेंगे, यहाँ पे लिख दिया है मैंने पहले से, ताकि नेमिंग करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैंने कहा कि कोई अगर ब्रांच है तो ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट कार्बन है आपका, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज़ वी हैव द फंक्शन 2, ये 3, 4 एंड 5, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे वी हैव मिथाइल, फोर्थ कार्बन पे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है, तो नेमिंग विल बी व्हाट, यू कैन से 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 पे आपका मिथाइल है। स्ट्रेट में कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यू कैन से व्हाट, 4 मिथाइल के बाद आपका आ जाएगा पेंट, पेंट के बाद आपका होगा यहाँ पे 3 इन, 3 इन, इन का मतलब होता है एल्कीन, इनका मतलब होता है एल्कीन, तो ये हो जाएगा आपका 3 इन, ई रिप्लेस्ड बाय व्हाट, कीटोन, तो ये हो जाएगा आपका 3 इन 2 1। ओके, so this way we can name IUPAC of these ketones which are derivative of what, alkenes. Okay, अगर आपके पास किसी कंपाउंड्स में, अभी एक कीटोन तो आपने सुना, बट अगर किसी कंपाउंड्स में भी हो 2 कीटोन, तो क्या करना है, तो कीटोन को क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, नेमिंग कर दो, आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ओके, so we have 4 carbon. Okay, you can say what is the simply you can say what, butane, butane, आप ब्यूटेन बोलोगे, यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, जब तो आपको कीटोन दिया रहेगा तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डायोन, ओके, DION, डाई मींस व्हाट, वी हैव 2 कीटोन, 1 का मतलब होता है यहाँ पे कीटोन, 1 का मतलब 1 नहीं, 1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कीटोन। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो आप देख सकते हो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से आपका, ये फंक्शनल ग्रुप से सेकंड कार्बन पे भी है मिथाइल, तो सिंपली यू कैन से आपका क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल साइक्लो कंपाउंड्स है हमारे पास यहाँ पे, साइक्लो हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, नॉन क्यों ऐड किया, बिकॉज वी हैव कीटोन, 1 मतलब होता है कीटोन। ओके, सिमिलरली ये देखो आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड्स वो है यहाँ पे, तो दिस इज आल्सो व्हाट, कीटोन, तो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो वी हैव 3 मिथाइल, 3 पे आपका यहाँ पे मिथाइल है, तो आप बोल सकते हो क्या, 3 मिथाइल, और कंपाउंड साइक्लिक है, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो, 3 मिथाइल साइक्लो क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनॉल,
ब्यूटेनॉल। ओके, तो इस तरह से कंपाउंड्स का नेमिंग बहुत अच्छे तरह से पॉसिबल है। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास। अगर मान लो कोई कंपाउंड्स है यहाँ पे जिसमें वी हैव द बोथ टाइप ऑफ फंक्शन, एल्डिहाइड्स एज वेल एज व्हाट कीटोन्स, दोनों दिया हुआ है। इस केस में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एल्डिहाइड्स को देना है। आप बोलोगे ऐसे क्यों? क्योंकि रूल्स बनाया हुआ है। ठीक है, 1993 रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो आईपीसी रिकमेंडेशन था उसके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द व्हाट एल्डिहाइड्स। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपका देखो एल्डिहाइड्स हमेशा लास्ट में आ सकता है, बट कीटोन आपका लास्ट में नहीं है। कीटोन क्या होता है, जब सीओ के साथ में ये बाजू में कार्बन, ये बाजू में कार्बन, दोनों कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका फर्स्ट कार्बन इज एल्डिहाइड्स 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और एक बात आपको याद रखना है, जब कहीं भी आपको एल्डिहाइड के साथ में कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कीटोन को बोलते हैं ऑक्जो, OXO ऑक्जो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 3 पे आपका ऑक्जो है। ओके, तो यहाँ पे स्पेस का कॉलम मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड 3 ऑक्जो। 3 पे आपका ऑक्जो है, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेनल। पेंटेनल, दिस इज कॉल्ड पेंटेनल, 3 ऑक्जो पेंटेनल। ठीक है, ये कंपाउंड का मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन और आईपीसी दोनों में एक्सेप्ट किए हुए हैं, कॉमन में भी और आईपीसी में चलता है। जैसे मैंने इसका बताया था, ये पार्ट को बोलते हैं एसीटोन, so this compound is called acetophenone, acetophenone। तो एसिटोफिनोन को इन लोगों ने क्या किया है, कॉमन और आईपीसी दोनों में दिखाया हुआ है। ठीक है, बट इसका कॉमन नेम एक स्पेसिफिक होता है जो कॉमन ही होता है, आईपीसी नहीं होता है। तो कॉमन में बोल सकते हो यहाँ पे क्या फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यू कैन से व्हाट मिथाइल फिनाइल कीटोन, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोन चलेगा। ठीक है, पर याद रखना जो एसिटोफिनोन है इट इज कंसीडर्ड इन द both common as well as what IUPAC। okay, similarly इसका भी हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। this compound is called benzophenone। benzophenone it comes under both the naming IUPAC as well as what common benzophenone। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसको कॉमन में स्पेसिफिक ये भी हो सकता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइफिनाइल कीटोन, ऐसे बोल दो आप। ठीक है, बट यहाँ पे आईयूपीएसी कॉमन में एक कॉमन नेम, मतलब दोनों में कॉमन नेम है व्हिच इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया क्या कि कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ व्हाट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बाद में देखेंगे, आज के लेक्चर में इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच।